In this video, we will discuss balance of payments adjustment policies. There are two approaches to make balance in the payments. One is the classical approach, other is interventionist approach. Classical approach is based on automatic adjustment and interventionist approach, as its name suggests, intervention from government. When government intervenes, government makes policies. On the basis of policies, government policies, balance of payment can be adjusted. These are two approaches. Classical approach, which is automatic. Automatic means no need of government interference. This is market based. This is with the government intervention. In classical approach, balance of payment adjustment is through fixed exchange rate or flexible exchange rate. With the help of both, either through fixed exchange rate or through flexible exchange rate, balance can be made. This is one heading. Classical approach. This is another heading. This is used by Mundell and Fleming. Mundell is professor in Columbia University. He is Nobel laureate, and Fleming is the researcher with IMF. In this approach, government can make these policies: expenditure changing policies, expenditure switching policies, or monetary approach to manage foreign exchange reserves. Expenditure changing policies are two policies: monetary policy and fiscal policy. Switching policies are through devaluation and revaluation. In this whole video, first we will discuss classical approach, and second we will discuss through monetary policy and through fiscal policy how we can make adjustment in the balance of payments. So these are two main points in this video. One is through classical approach, that is automatic adjustment. Other is through policies, monetary policy as well as fiscal policy. The first heading is classical approach. Under free market conditions, free market condition means no government interference. The market mechanism means the forces of demand and supply, automatically solves the problem of balance of payments on the basis of exchange rate, as we seen in the heading automatic adjustment through exchange rate, fixed exchange rate or flexible exchange rate.
फ्री मार्केट में जो मार्केट मैकेनिज्म है उसके थ्रू ऑटोमेटिकली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेट. There are some assumptions of this approach. First, suppose there is perfect competition in international commodity market. So, suppose there are many countries in the world. ये जो वर्ड मार्केट है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज़ बेचना, किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री को चीज़ बेचना, खरीदना, दिस इज इंटरनेशनल सपोज प्रोडक्ट मार्केट, commodity market. In this there is perfect competition. Perfect competition means product is almost homogeneous and the price is same. Second assumption is perfect competition in international capital market. तो जैसे कमोडिटी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में, सेम इन कैपिटल मार्केट देयर इज परफेक्ट कंपटीशन. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो कैपिटल है वो ट्रांसफ़र हो सकता है विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एट द फिक्स्ड रेट. नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. As its name suggests, this is free market, no interference of the government. तो free flow of goods and capital. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में goods and capital का आना जाना, that is totally free without government restrictions. Fourth point, international competitiveness of countries facing balance of payment deficits. तो इसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जिस कंट्री का, सपोज इस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने ठीक करना है, दिस कंट्री इज नॉट ए स्मॉल कंट्री, तो इसकी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है, मतलब इसके में जो चेंजेस हैं वो अफेक्ट करती हैं बाकी कंट्रीज को, और बाकी कंट्रीज का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है लाइक दिस. फिफ्थ पॉइंट, ए फेयरली हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स. जो इंपोर्ट्स की इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी, दैट इज वेरी हाई. हाई मीन्स इलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल, if we say this is commodity जो import करनी है, this is the price of this commodity जो import करनी है, its price elasticity of demand is very elastic like this. Elastic means with minor change in price, a small or brief fall in price, demand will rise more than the fall in price. Or you can say percent change in demand for imports is greater than percent change in price of imports. तो जैसे ही इंपोर्ट की थोड़ी सी प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है. दिस इज हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट्स. लास्ट assumption, a fairly high income elasticity of demand for imports. ऐसे ही जो इनकम इलास्टिसिटी है दैट इज आल्सो वेरी हाई, मतलब
थोड़ी सी यहाँ हम प्राइस की जगह अगर इनकम लगाएं, थोड़ी सी इनकम इंक्रीज होने से इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. These are some assumptions. There are 2 points to make the adjustment. One is through fixed exchange rate, other is through flexible exchange rate. We will explain every point. First, suppose fixed exchange rate. Automatic balance of payment adjustment under fixed exchange rate. Exchange rate is kept fixed between lower and upper limits decided by the IMF. IMF, International Monetary Fund. तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया, एक्सचेंज रेट की सपोज एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट डिसाइड कर दी. इसके बीच बीच में एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है, बट रहेगा इसके बीच बीच, फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर टू लोअर. तो इसके बीच में अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है देन वी कॉल इट फिक्स्ड. तो थोड़ा बहुत चेंज अलाउड है, बट नॉट बियॉन्ड दीज लिमिट्स. When BOP, balance of payments, of a country shows surplus or deficit, तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में ना हो, सरप्लस हो, डेफिसिट हो, द एक्सचेंज रेट चेंजेस, एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगी विद इन दीज लिमिट्स. देन द गवर्नमेंट ट्राइज टू कीप एक्सचेंज रेट फिक्स्ड विद इन गिवन लिमिट्स. तो जब भी किसी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आएगी, सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, क्योंकि उसकी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है कंट्री की, इसलिए वो अदर कंट्री के साथ उसका जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो जाएगा. देन गवर्नमेंट कोशिश करेगी उस एक्सचेंज रेट को इस लिमिट में रखने की, एंड अलाउज अदर मार्केट कंडीशंस टू ऑपरेट फ्रीली. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जब एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट इसके बीच में ही रखने की कोशिश करेगी. जो बाकी कंडीशंस हैं, बाकी क्या कंडीशंस हैं, कैसे है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे आगे. उनको गवर्नमेंट ओपन छोड़ देगी, फ्री छोड़ देगी, विदाउट इंटरफेरेंस. Like this, suppose in this diagram IS is 1, IS चेंज नहीं हो रहा. जो LM है मनी मार्केट में, LM ही चेंज हो रहा है. तो IS1, IS एंड BOP वो एक ही है, बट जो LM है, LM लेफ्ट राइट वो शिफ्ट हो सकता है. इस डायग्राम को हम दोबारा बना लेते हैं स्टेप वाइज.
suppose it is y income, other side we are taking rate of interest. In case of ISLM chapter, you know, when we draw ISLM curves, BOP curves, we draw these curves on income and rate of interest axis. जो IS है, IS is same, जैसे हमने अभी डिस्कस किया. IS सपोज एक ही है, इट इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होगा सपोज. तो इसको हम थोड़ा थिक बना लेते हैं बिकॉज ये एक ही है. सपोज दिस इज IS1. Initially, suppose there is equilibrium in domestic market, and this equilibrium is suppose at this point. This is suppose LM. This is suppose LM 0. Initially, the equilibrium is at this point. Suppose this is point S and this is Y0 and suppose this is R2. This is our domestic market equilibrium. Equilibrium in product market and money market. This is the simultaneous equilibrium in both markets at Y0 income and R2 rate of interest. अब जो BOP लाइन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सपोज दिस इज द BOP line. BOP is positively sloped. This is suppose BOP. अब क्या है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट में तो इक्विलिब्रियम बन गया, बट अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखें, इंटरनेशनल मार्केट में इक्विलिब्रियम, फॉरेन मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं बना. दिस इज BOP लाइन. जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर है. एंड इफ यू सी दिस S point is on the left side or above this BOP. जो S point है वो BOP के ऊपर है, और अगर BOP के ऊपर कोई पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सरप्लस. BOP सरप्लस. तो ये BOP सरप्लस है. अगर हम यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, यू कैन चेक.
अभी हमने बनाया है IS1, LM0, दिस इज पॉइंट S, Y0, R2 और ये है BUP। ये हमारा डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है फिलहाल। सपोज इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट S, तो ये S पे है, बट द एक्सटर्नल सेक्टर इक्विलिब्रियम इज एट E। एक्सटर्नल सेक्टर यहाँ पे है इस पॉइंट पर। सिंस S इज अबव एंड लेफ्ट ऑफ E, तो S BOP के ऊपर है, इट शोज BOP सरप्लस। तो ये BOP सरप्लस को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट S। अब क्या होगा, सरप्लस मीन्स सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन डोमेस्टिक मार्केट एक्सीड्स, ये इंपॉर्टेंट है, द डिमांड फॉर इट। मीन्स सरप्लस मीन्स हमारी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, तभी हमारे पास सरप्लस है। तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट फॉरेन करेंसी विल डेप्रिशिएट इन द डोमेस्टिक मार्केट। क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में, हमारी मार्केट में जो हमारे पास फॉरेन करेंसी है वो ज़्यादा है, उसकी सप्लाई ज़्यादा है पर उसकी डिमांड कम है। एंड दिस इज़ द सिंपल रूल, इफ़ सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड तो उस चीज़ की जो प्राइस है वो कम हो जाती है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, उसकी सप्लाई ज़्यादा है, एज अ रिज़ल्ट उसकी प्राइस कम हो गई और यू कैन से वो डेप्रिशिएट हो गई। एंड इसके कंपैरेटिव जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट हो गई। क्योंकि अगर दूसरी करेंसी, जैसे सपोज डॉलर हम लगाएं कि 70 रुपीज़ में सपोज $1 आ जाता है, अगर हम कहते हैं कि ये डेप्रिशिएट हो गई, इसकी वैल्यू फॉरेन करेंसी की डेप्रिशिएट मीन्स अब ये 60 रुपीज़ में ही $1 आ जाएगा। दिस इज़ द डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। क्योंकि पहले $1 लेने के लिए 70 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब सेम डॉलर 60 रुपीज़ में आ जाएगा। तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो गई, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स विल बिकम कॉस्टलियर। हमारी कंट्री से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि पहले हमारी कंट्री से USA वालों को 70 रुपीज़ का सामान लेने के लिए $1 देना पड़ता था, अब उनको 70 रुपीज़ का सामान लेने के लिए $1 से ज़्यादा अमाउंट देना होगा। क्योंकि $1 में 60 रुपीज़ का ही सामान आएगा, 70 का नहीं आएगा। तो $1 से ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इट मीन्स जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉस्टलियर हो गए और जो इम्पोर्ट्स हैं वो चीपर हो गए। इम्पोर्ट्स बिकम चीपर, इम्पोर्ट्स चीप हो गए। क्योंकि इंडिया वालों ने अगर USA से पहले $1 का सामान लेना था तो 70 रुपीज़ देने पड़ते थे, अब सेम बास्केट ऑफ गुड्स दे कैन बाय एट 60 रुपीज़। तो एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए, इम्पोर्ट्स सस्ते हो गए, ऐसी सिचुएशन बन गई। और यू कैन से दोबारा अगर हम देखें अपनी कंट्री में इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सरप्लस है। सरप्लस होने की कारण जो फॉरेन एक्सचेंज है
वो हमारी कंट्री में ज़्यादा है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को रोकने के लिए अब गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब फॉरेन करेंसी अपने पास ज़्यादा है, तो अब हम इसका क्या करेंगे बैलेंस बनाने के लिए। गवर्नमेंट वुड आइदर इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई वो बढ़ाएंगे, टू मैच द सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज। जैसे सपोज अपने पास जो फॉरेन करेंसी है सपोज वो हो 1000, अपनी जो करेंसी है सपोज वो अपने पास हो 800, तो अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ज़्यादा है, तो इसको हमने बराबर करना है। दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है, गवर्नमेंट वुड आइदर इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, या तो हम इसको 800 को बढ़ाकर 1000 कर दें, जो भी इसकी वैल्यू सिमिलर आती है, और सेल द सरप्लस फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, या फिर हम क्या करें, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसको हम रुपीस टर्म में अगर कन्वर्ट करके देखें कि कितना हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर दें। तो दो तरीके हो गए, या तो हम अपनी करेंसी $200 के हिसाब से ज़्यादा इंक्रीज कर लें, या फिर हम जो एक्स्ट्रा अपने पास फॉरेन करेंसी है उसको सेल कर दें। इन बोथ केसेस हम कुछ भी करें, चाहे अपनी करेंसी बढ़ाएं चाहे फॉरेन करेंसी सेल करें, इन बोथ केसेस मनी सप्लाई इंक्रीजेस, तो अपनी कंट्री में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, LM शिफ्ट्स टू द राइट। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो ये जो LM है देखो, मनी सप्लाई बढ़ने से ये जो LM है ये राइट शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे राइट शिफ्ट होगा और यहाँ पर आके फिर इसका इक्विलिब्रियम बन जाएगा। Suppose this is LM1, this is point E, and this is the Y1, and this is suppose R1। तो इस E पॉइंट पर हमारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बन गया इन डोमेस्टिक मार्केट प्रोडक्ट एंड मनी एंड इन फॉरेन मार्केट BOP। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ BOP सरप्लस। ऐसे ही अगर सपोज हमारे पास डेफिसिट हो, हम डेफिसिट में हो, जो पहला पॉइंट है S वो E पॉइंट के लेफ्ट और BOP के अबव होने की बजाय सपोज करो ये नीचे हो, सपोज हमारी जो LM है वो यहाँ पर हो, ये हो हमारी LM, suppose it is LM2 and this is point D। तो इसमें क्या होगा, अगर सपोज ये केस हो तो इसमें क्या है, डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम बन गया बिकॉज ऑफ IS एंड LM, बट जो BOP है वो ऊपर है, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नहीं बना, और ये D पॉइंट जो है BOP के नीचे है, इट मीन्स इट शोज डेफिसिट। अगर आप इससे पहले वीडियो देखो
देन यू विल फाइंड कि बीओपी के ऊपर सरप्लस होता है, बीओपी के नीचे डेफिसिट होता है। दिस पॉइंट शोज डेफिसिट। तो डेफिसिट होने का मतलब क्या होगा? डेफिसिट का मतलब हमारे पास, जैसे हमने पहले बनाया, सरप्लस का मतलब था हमारे पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा है, अपनी करेंसी कम है, तो हमने अपनी करेंसी बढ़ाई। अब क्या होगा? देखो, डेफिसिट का मतलब हमारे पास फॉरेन करेंसी कम है, दैट इज डेफिसिट। अपनी करेंसी ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा? हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। जो भी मतलब करेंसी ज़्यादा है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। जैसे सपोज किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लाइक दैट। तो फॉरेन करेंसी हमारे पास कम है, वो एप्रिसिएशन हो जाएगी उसकी वैल्यू, और जो डोमेस्टिक करेंसी है वो ज़्यादा है, इसके लिए उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? फॉरेन करेंसी को बढ़ाएंगे, वो तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम, जो सेंट्रल बैंक होगा, वो इंटरनेशनल मार्केट से फॉरेन करेंसी बाय करेंगे बढ़ाने के लिए। फॉरेन करेंसी को बढ़ाने के लिए वो इंडियन रुपीस क्योंकि अपने पास ज़्यादा है, ये करेंसी कम है, तो ये हम देख के फॉरेन मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से ये करेंसी ले लेंगे। तो उससे क्या होगा? जो हमारी मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी, एंड एलएम जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो, जैसे ही हम एलएम को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे फ्रॉम एलएम टू, तो ऐसे हम लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे, एंड हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज द केस विद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, कि हम बीओपी को कैसे एडजस्ट करते हैं। Now with flexible exchange rate, ऑटोमेटिक बीओपी एडजस्टमेंट, क्लासिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं हम। बीओपी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक है, उसके दो तरीके हैं, जैसे हमने पहले देखा, एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। Flexible exchange rate means that exchange rate is determined by market forces of demand and supply, not fixed by the central bank. तो इससे पहले क्या था? इससे पहले जो सेंट्रल बैंक था उसने एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने की कोशिश की, फिक्स रखने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ बाइंग और सेलिंग फॉरेन करेंसी। बट इस केस में क्या होगा? इस केस में जो एक्सचेंज रेट है उसमें गवर्नमेंट कोई उसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करेगी, उसको छोड़ दिया जाएगा मार्केट के ऊपर फ्री एडजस्टमेंट के लिए। तो उसमें हम सरप्लस को कैसे ठीक करेंगे, डेफिसिट को कैसे ठीक करेंगे, ये दोनों अलग अलग हेडिंग बना के हम पढ़ेंगे इसको। पहले सपोज हाउ टू एडजस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। तो सरप्लस को हम पहले कैसे ठीक करेंगे? इसमें देखो, जैसे पहले हमने डायग्राम बनाई, उसमें आईएस एक ही है, एलएम शिफ्ट होता रहा। अब जो डायग्राम बनाएंगे हम, उसमें आप देखो एलएम एक ही है, जो आईएस है वो शिफ्ट होगा, ये आप ध्यान रखना है पहले। तो इस डायग्राम को हम दोबारा बना लेते हैं।
suppose this is Y and R income and rate of interest। तो इसमें क्या है, जो LM है LM is 1, LM एक ही है। Suppose this is LM, इसको हम थोड़ा थिक बना लेते हैं बिकॉज दिस इज फिक्स्ड, इसको हमने चेंज नहीं करना। सपोज इट इज LM1। अब जो IS है, IS, सपोज IS is IS1, this is suppose IS1। अब जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट के ऊपर। सपोज दिस इज पॉइंट S, दिस इज डोमेस्टिक मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर मनी मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट दोनों साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पे हैं। सपोज इट इज Y1, दिस इज सपोज R1। जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लाइन, suppose BOP line is this, positive है। This is suppose BOP 1। अब हमने क्या किया, जैसे हमारा हेडिंग है एडजस्टमेंट ऑफ BOP सरप्लस, तो ये हमने सरप्लस का केस बना लिया, क्योंकि दिस इज BOP। जो इक्विलिब्रियम है एट पॉइंट S एंड दिस इज ऑन द लेफ्ट और अबव BOP लाइन, दिस शोज सरप्लस। Now listen. Initially IS1 है, LM1 है, BOP1 है। At S this point, अब हमने LM बनाया, IS बनाया, BOP बनाया, ये पॉइंट S लगाया, Y1 R1। IS1 equals to LM1 है, डोमेस्टिक मार्केट इक्विलिब्रियम, बट नॉट BOP1। BOP1 इक्विलिब्रियम में नहीं है। At S there is surplus because S is above and left of BOP। ये सारा कुछ हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो क्या होगा, सरप्लस मीन्स मोर फॉरेन एक्सचेंज। अगेन हमारे पास सरप्लस है, इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जैसे पहले आया था। एक्सपोर्ट्स विल फॉल क्योंकि एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर हो गई। इंपोर्ट्स विल राइज क्योंकि इंपोर्ट्स चीपर हो गए। तो एक्सपोर्ट हमारे कम हो गए, इंपोर्ट ज़्यादा हो गए। जैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिखते हैं X-M, तो एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो गए, इंपोर्ट ज़्यादा हो गए। तो इससे क्या होगा, देयर विल बी ट्रेड डेफिसिट। फॉरेन ट्रेड में जो है वो डेफिसिट आ जाएगा क्योंकि इंपोर्ट्स ज़्यादा हो गए। डेफिसिट आ गया तो इनकम कम हो जाएगी, वाई विल फॉल। तो जब ये सब कुछ होगा, these changes will pull investments in the domestic country downward। तो डोमेस्टिक कंट्री में इनकम कम होने से, एक्सपोर्ट कम होने से, इंपोर्ट ज़्यादा होने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। और IS जो है
वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। अब इनकम कम हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने टच नहीं किया, इनकम कम हो गई तो बीओपी भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे हमने इससे पहले वीडियो में बीओपी कैसे शिफ्ट होता है वो देखा था कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर इनकम कम हो जाए देन बीओपी शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स। तो क्या हुआ, आईएस भी लेफ्ट शिफ्ट हो गया, बीओपी भी लेफ्ट शिफ्ट हो गया। आईएस एंड बीओपी दोनों लेफ्ट शिफ्ट हो गए। सपोज जो बीओपी है वो यहाँ से लेके यहाँ से है ये बीओपी, तो इसको हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। सपोज ये है सपोज बीओपी 0 और आईएस भी लेफ्ट शिफ्ट हो गया और यहां तक ये शिफ्ट हो गए। तो यहां तक शिफ्ट होने से क्या हुआ, दिस इज आईएस 0 जो न्यू इक्विलिब्रियम बना वो बन गया एट दिस पॉइंट। सपोज दिस इज पॉइंट ई। तो इस पॉइंट पे आकर क्या हुआ, जो हमारा सरप्लस था पहले वो अब इक्विलिब्रियम बन गया, एडजस्ट हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट ये जो एडजस्टमेंट है इसमें थोड़ा सा लॉस हो गया। इसमें इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों कम हो गए, इनकम भी कम हो गई और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज दिस इज R0 ये भी कम हो गया। बट जो बीओपी है वो एडजस्ट हो गया, इक्विलिब्रियम हमारा इंटरनेशनल मार्केट में बन गया, यहाँ तीनों सेम है। Similarly, we can adjust BOP डेफिसिट। तो BOP डेफिसिट जो है उसको भी हम ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो LM एक ही है, इक्विलिब्रियम डोमेस्टिक में होगा पहले, फिर हम इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम बनाएंगे। इस डायग्राम को भी हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। Suppose this is income Y and R। जो LM है, LM पहले की तरह LM है सेम। Suppose this is LM। This is suppose LM1, ये सेम है। एंड जो IS है, IS सपोज पहले है हमारा IS1। सपोज दिस इज IS1। एंड ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम, डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम। सपोज इट इज D पॉइंट
this is income and this is rate of interest. Suppose this is Y1, this is suppose R1. जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है BOP, सपोज BOP है यहां पर पॉजिटिव लाइन, सपोज दिस इज BOP 1. Our domestic equilibrium point D is on the right side or below BOP line. It means this shows deficit. अब ये जो है डोमेस्टिक मार्केट में तो इक्विलिब्रियम है, ISLM बराबर हैं, बट जो इंटरनेशनल मार्केट है BOP वो बराबर नहीं है एंड ये डेफिसिट है. Now listen. Initially IS1, LM1, BOP1. At D deficit, IS1 equals to LM1 but not BOP1. D पॉइंट के ऊपर ISLM बराबर हैं बट BOP बराबर नहीं है. And at D there is deficit because D is below and right of BOP1. तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पे देख लिया. तो क्या होगा, डेफिसिट मीन्स लेस फॉरेन एक्सचेंज. अगर हमारे पास डेफिसिट है इट मीन्स हमारे पास फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज कम है. तो उसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी ज़्यादा है फॉरेन एक्सचेंज के कंपैरेटिव, तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी. एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि अब ऊपर वाले पॉइंट से उल्टा हो गया, एंड इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एंड हमारे पास जो ट्रेड सरप्लस है वो जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर हम लिखें तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होने शुरू हो गए, इंपोर्ट कम होने शुरू हो गए क्योंकि इंपोर्ट हमारे अब कॉस्टलियर हो गए, एक्सपोर्ट चीपर हो गए. तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, डेप्रिशिएट हो गई. फॉरेन एक्सचेंज की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास कम है, डोमेस्टिक करेंसी हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई. तो उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट कम हो जाएंगे, तो ट्रेड सरप्लस स्टार्ट हो जाएगा. अब एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से जो इनकम है वो बढ़ जाएगी. इससे क्या होगा, दीज चेंजेस विल पुश इन्वेस्टमेंट्स इन द डोमेस्टिक कंट्री अपवर्ड. उससे IS विल शिफ्ट राइटवर्ड्स एंड BOP शिफ्ट राइटवर्ड्स. तो जैसे IS है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से IS राइट शिफ्ट हो जाएगा, और सेम R के ऊपर जब इनकम बढ़ेगी तो BOP राइट शिफ्ट हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम है, जो BOP एडजस्टमेंट है वो बन जाएगा. तो जैसे हमने देखा, अब इसमें क्या होगा कि जो IS है, IS वो राइट शिफ्ट हो जाएगा, कहीं भी हम लगा सकते हैं. सपोज ये यहाँ से राइट शिफ्ट हो गया, सपोज दिस पॉइंट IS 2, एंड जो BOP है, BOP भी राइट शिफ्ट हो गया.
सपोज इट इज BOP 2 और हमारा जो नया इक्विलिब्रियम बना वो बन गया इस पॉइंट पर, सपोज E, where income is Y2 and rate of interest is R2। तो इनकम भी ज़्यादा हो गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो गया। तो हमारा जो डेफिसिट था वो हमने एडजस्टमेंट कर दिया, इक्विलिब्रियम अब हमारा डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन दोनों मार्केट्स में बन गया। दिस वाज आवर टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट विद क्लासिकल अप्रोच, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, नो इंटरफेरेंस। अब हम देखेंगे कि इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच जो है, इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच जो मोंडल फ्लेमिंग ने यूज़ किया थ्रू पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी मींस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के साथ हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं थ्रू दिस पॉलिसीज। तो ये जो चार्ट है इसमें हम अब स्टडी करेंगे दिस हेडिंग। इसको हम मोंडल फ्लेमिंग मॉडल भी कहते हैं बिकॉज इट इज गिवन बाय मोंडल एंड फ्लेमिंग। ये हमारा हो गया। द मेन रीज़न फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों करेगी? जैसे हमने पहले बनाया ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट चलता रहने दो, क्यों गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है? ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट क्यों ठीक नहीं है? इंटरफेरेंस की ज़रूरत क्यों है? The main reason for government intervention is that market mechanism, जो हम पहले क्लासिकल में पढ़ते हैं, does not ensure a desirable solution to BOP disequilibrium on time। जो मार्केट मैकेनिज्म है वो हो सकता है टाइम पर हमें रिजल्ट ना दे। Thus, countries facing balance of payment deficits, तो जिन कंट्रीज़ को डेफिसिट की प्रॉब्लम है, क्या करते हैं वो इनवेरिएबली अडॉप्ट सम सूटेबल फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स टू करेक्ट देयर एडवर्स BOP। तो फिर जो कंट्रीज़ होती हैं जिनमें ये प्रॉब्लम है डेफिसिट की, वो फिर फिस्कल पॉलिसी को या फिर मॉनेटरी पॉलिसी को या फिर दोनों को मिक्स उसका यूज़ करते हैं पॉलिसीज़ का, ताकि डेफिसिट को ठीक किया जा सके। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉलिसी मेजर्स, क्या कारण हैं? फर्स्ट है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट अप्रोच। जो हमने क्लासिकल अप्रोच स्टडी की उसकी जो अजम्पशंस हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। जैसे ये जो अजम्पशंस हैं क्लासिकल की, perfect competition, no government interference, these are some unrealistic assumptions. Second, even if market system works efficiently, अगर market system, automatic adjustment system, classical system efficiently काम कर भी रहा हो, the economic cost of automatic adjustment is very high।
क्योंकि जैसे हमने देखा डज नॉट इंश्योर ए डिज़ायरेबल सोल्यूशन ऑन टाइम, तो उसमें क्या होगा, जब तक ये एडजस्टमेंट अपने आप होगी तब तक जो हमारा इकॉनमी को लॉस होगा वो ज़्यादा हो सकता है। द इकोनॉमिक कॉस्ट अराइजेज ड्यू टू, अब इकोनॉमिक कॉस्ट क्यों अराइज होती है, क्यों लॉस होता है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि उसमें आपने कुछ नहीं किया, अपने आप एडजस्टमेंट होना है, तो एडजस्टमेंट कब होगा, कितना टाइम लगेगा, सही डायरेक्शन में होगा नहीं होगा, दिस इज द अनसर्टेनिटी। इट इज़ इमेंसली डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द कोर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, इसलिए हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिसाइड्स द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट प्रोसेस मे इन्वॉल्व हाई इकोनॉमिक कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे हमने पहले स्टडी किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो गया, यहाँ पर देखो जैसे हमने पहले देखा था, बट इनकम फॉल हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। यहाँ पे हमने देखा आर ज़्यादा हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक तो हो गया बट देयर में भी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मोस्ट कंट्रीज हैव नाइदर द रिसोर्सेज नॉर डू दे फाइंड इट अफोर्डेबल एंड डिज़ायरेबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो आमतौर पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आम सभी कंट्रीज़ इन कॉस्ट्स को, इन लॉसेस को टॉलरेट नहीं कर सकते वो, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफियर करने की ज़रूरत है। थर्ड रीज़न, द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म रिक्वायर्स दैट BOP surplus countries tolerate rise in domestic prices and outflow of capital। तो जो यहाँ पे सरप्लस है, जैसे हमने स्टडी किया क्लासिकल में, अगर सरप्लस है तो हमने क्या देखा था कि हम अपनी एक्सेस फॉरेन करेंसी को सेल कर देंगे क्योंकि हम डोमेस्टिक करेंसी उसके बराबर लेके आएंगे। बट जनरली अगर हम देखें, द कंट्रीज आर अनविलिंग टू डू दिस, तो आमतौर पर जो कंट्रीज़ हैं वो ऐसे नहीं करते क्योंकि वो अपना जो फॉरेक्स है वो कम नहीं होने देना चाहते। ये कुछ कारण हैं कि हमें एडजस्टमेंट करने के लिए इंटरफेयर की, मॉनेटरी पॉलिसी की, फिस्कल पॉलिसी की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको, इस सेकंड हेडिंग को क्लासिकल अप्रोच की क्रिटिसिज्म भी मान सकते हो, और इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच की नीड, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, वो भी इसमें लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। What are the policy measures? Individually, none of these policies are sufficient. Individually means एक पॉलिसी, ना तो मॉनेटरी पॉलिसी और ना ही फिस्कल पॉलिसी अकेले इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। दस पॉलिसी मेकर्स, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, नीड अ मिक्स ऑफ दीज पॉलिसीज, तो वो मिक्स अपनाते हैं इसका, बोथ पॉलिसीज वो यूज़ करते हैं। टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए। एन अप्रोप्रिएट मॉनेटरी फिस्कल मिक्स, तो दोनों जो पॉलिसीज़ हैं उसका जो मिक्स है इन ओपन इकोनॉमी आल्सो इज डेवलप्ड बाय मंडल फ्लेमिंग इन अर्ली 1960s। तो इसका जो एक बेस्ट सोल्यूशन है कि मिक्स पॉलिसीज़ को कैसे यूज़ करना है, मंडल फ्लेमिंग ने 1960s में ये एक्सप्लेन किया है कि हम गवर्नमेंट कैसे दोनों पॉलिसीज़ को यूज़ करें टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस।
there are some assumptions of Mundell-Fleming model. Suppose exchange rate is fixed. Suppose capital is mobile. कैपिटल ट्रांसफ़र हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे. एंड सपोज देयर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड डेफिसिट. जैसे हमने इससे पहले वीडियो में देखा कि दो तरह के अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांसफ़र होते हैं और करंट अकाउंट में गुड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन होते हैं. तो इसमें हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम है डेफिसिट की, सपोज प्रॉब्लम है, इट इज़ ड्यू टू ट्रेड डेफिसिट, दैट इज़ ड्यू टू करंट अकाउंट. व्हाट आर दीज एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसीज. जैसे हमारा जो मेन हेडिंग है चार्ट में, दिस इज एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिस्कल, also known as expenditure adjusting policies. इसको हम expenditure adjusting policies भी बोलते हैं. मतलब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जो गवर्नमेंट है किसी कंट्री की, वो एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करेंगे टू एडजस्ट BOP, एम्ड एट चेंजिंग मीन्स डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द डोमेस्टिक इकॉनमी. अपनी कंट्री में वो एक्सपेंडिचर को चेंज करने के लिए, इसलिए हम इनको एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट भी कहते हैं. कंट्रीज फेसिंग BOP डेफिसिट ड्यू टू ट्रेड डेफिसिट्स, जैसे ये अजम्पशन है, अडॉप्ट एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज. तो जिस कंट्री में डेफिसिट होगा वो एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने की पॉलिसी अपनाएंगे. ये नोट करने वाली बात है. अगर BOP डेफिसिट है, इट मीन्स एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज यूज़ करनी है. तो इसको अगर आप अलग से नोट करो, BOP डेफिसिट जो अगर है तो हमने क्या करना है, एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना है. ऐसी पॉलिसी अपनानी है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे हमारी डोमेस्टिक कंट्री में एक्सपेंडिचर कम हो डेफिसिट को ठीक करने के लिए. इसको हम इक्वेशनली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. y इक्वल्स टू C+I, ये हमारा कॉमन केन्जियन फंक्शन है. एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, जैसे केन्स ने दिया है कि हमारी जो इनकम है, बिजनेस सेक्टर है I, हाउस होल्ड सेक्टर है C. अगर हम थर्ड सेक्टर इंक्लूड कर लें, गवर्नमेंट, जैसे कि हम अब कर रहे हैं थ्रू पॉलिसीज, प्लस G, और ये है एक्सटर्नल सेक्टर X माइनस M. ये हमारी टोटल इनकम है. अगर सपोज M ग्रेटर देन X हो, M ग्रेटर देन X मीन्स डेफिसिट, इम्पोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स मीन्स डेफिसिट. तो इसको हम बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट. अगर ये X माइनस M हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा डेफिसिट, मतलब सरप्लस. thus C+I+G, this is same. X माइनस M को हम लिख सकते हैं माइनस TD. तो इसको हमने लिख दिया, X माइनस M को माइनस TD, ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि हमने डेफिसिट बनाना है. तो जो TD है, अगर हम इसको राइट लेफ्ट ले जाएं, TD क्या बन गया, C+I+G माइनस Y. तो डेफिसिट कब होगा, जब C+I+G, मतलब जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, ये बन गया कंजम्पशन के गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर, ये बन गया प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर, ये बन गया एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट टू बाय गुड्स
एंड सर्विसेज। तो जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है कंट्री में द होल, दिस इज ग्रेटर देन इनकम, क्योंकि अगर इसमें से माइनस करके कुछ आता है जो कि डेफिसिट है, तभी हम इसको डेफिसिट बोलते हैं कि एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। इसीलिए हमने एक्सपेंडिचर को कम करना है। तो ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है जिसके बेस पे हम पूरा चैप्टर मंडल फ्लेमिंग स्टडी कर सकते हैं कि अगर किसी कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, मेनली ड्यू टू अगर वो ट्रेड डेफिसिट है, तो हमने उसको ठीक करने के लिए एक्सपेंडिचर को कम करना है। तो एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए गवर्नमेंट ट्राइज टू रिड्यूस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी और मिक्स ऑफ बोथ पॉलिसीज। तो मॉनेटरी पॉलिसी से ये कैसे होगा, फिस्कल पॉलिसी से कैसे होगा, दोनों पॉलिसीज के साथ कैसे होगा, अब हम ये स्टडी करेंगे। यही है सारा मंडल फ्लेमिंग मॉडल, इन तीनों पॉइंट्स को स्टडी करना। तो हम स्टडी कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम पहले मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे ठीक किया जाता है। ए मॉनेटरी पॉलिसी एम्ड एट इंक्रीजिंग मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मतलब अगर कोई ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी हम यूज़ करें या कोई जो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी हो जिसके साथ मनी सप्लाई बढ़ जाए या कंट्री में कैपिटल बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और इजी मनी पॉलिसी, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। और अगर इसका उल्टा करो, ए मॉनेटरी पॉलिसी एम्ड एट डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने कौन सी अपनानी है, ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। एक कंक्लूजन हमने निकाल रखा है कि अगर डेफिसिट है तो हमने एक्सपेंडिचर कम करना है। तो पहले हम डेफिसिट की ही बात करेंगे कि डेफिसिट को कैसे ठीक किया जाए। This we will explain in the next video. Thank you.